जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पिता जी, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सब तो पहले मैं गुरु जी ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਔਰ ਸੁੱਕਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 7 ਜੁਲਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ 4 ਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੁਗਰੀ ਬੁਲਾਇਆ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਮੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਸੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾ ਘਰ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਪਾਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज गुरु जी का जन्मदिन है। मेरे प्यारे गुरु जी को, मेरे गुरु पिताजी को जन्मदिन की करोड़ों करोड़ों अनंतम अनंतम बधाइयाँ, लख लख बार बधाइयाँ, करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ मेरे मालिक। अपने सभी संगत का कल्याण करना गुरु जी, सभी संगत को बहुत बहुत रक्षा करना, प्यार देना गुरु जी। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी सेवादार जो सत्संग से शेयर करते हैं उनको मेरा जय गुरु जी। और गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, क्योंकि आप गुरु जी की बहुत ही प्यारी सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी, आपकी इस पागल बेटी को, मूर्ख को कुछ भी नहीं आता, आप ही मुझे सिखा रहे हैं और बड़े ही प्यार से सिखा रहे हैं गुरु जी, क्योंकि मेरा तो साथ देने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं। बिल्कुल अकेली सी हूँ। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता गुरु जी, ये सोच कर भी मेरा जी घबराता है। मैं आपने मेरा हाथ थामा जब से गुरु जी, मेरे को बहुत बहुत शांति है, बहुत मेरे मन को सुकून है। ना जाने आपने कितनी तकलीफ़ों से मुझे बचा के रखा है गुरु जी। आज मैं आपके में इतने प्यारे प्यारे सत्संग है गुरु जी, पर पता नहीं मुझे कौन सी नेगेटिविटी घेर के रखती है कि मेरा हर चीज़ से मन उखड़ सा जाता है। मतलब बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत कम कर पाती हूँ गुरु जी। बड़ा भारी सा मन हो जाता है। और आज मेरे गुरु जी का जन्मदिन है, तो आज मैं एक छोटा सा सत्संग में अपने गुरु जी का शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की दात तो बहुत बड़ी है, पर मेरे को बड़ा तरीके से और छुप के शेयर करना पड़ता है, क्योंकि मेरे इन लॉज में तो कोई मानता नहीं है। खासतौर पर मेरे पति तो बिल्कुल गुरु जी के बहुत तगड़े विरोधी हैं। तो गुरु जी, जैसा समय मिलता है वैसे आप मेरा स्वीकार कर लीजिए। बस मैं तो यही कहूँगी कि मेरे घर में, मेरे ससुराल में मेरा अच्छा समय लाइए प्रभु, कि मैं शांति से जी सकूं और सब मेरे पक्ष में हो। मेरे पति अंकल जो बिल्कुल मुझसे रूठ चुके हैं, मतलब 3.5-4 साल होते हैं शादी को होते आ रहे, पर वो मेरे को, मुझे पति का कैसा भी अपनापन सुख दिखता नहीं गुरु जी। कोई एक भी मुझे अपने ससुराल में अपना नहीं लगता। बस मैं चल रही हूँ गुरु जी। वो आप चला रहे हैं, ये भी मेरी गाड़ी आपने चला रखी है, वरना मेरा तो सब कुछ बिखरा ही पड़ा है। और आपने ही मुझे बोला है कि पुत्र हिम्मत नहीं हारनी, सब ठीक करूँगा मैं। तो बस ज़िंदगी आपके भरोसे, आपके चरणों में रख दिए गुरु महाराज। आप ही चला रहे और आपने ही चलानी है मेरे मालिक। संगत जी, मैं सबसे पहले अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की। संगत जी, गुरु जी जब भी कोई मैसेज देते हैं तो हम संगत ना इतने मूर्ख है, कई बार हम उसको ना हल्के में ले लेते हैं कि नहीं शायद हमारे लिए होगा, नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हेडलाइन जो थंबनेल होता है वो ऐसा होता है। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए कैसे हो सकता है। लेकिन अगर वो मैसेज बार बार कोई फ्लैश कर रहा है आपके आगे, तो संगत जी बिल्कुल वो आपके लिए हो सकता है। आपको गुरु जी की आदेश मान के, गुरु जी की आज्ञा मान के उसको कम से कम सुनना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए थोड़ा, जैसा भी। तो संगत जी, मेरे पास एक मैसेज बार बार आ रहा था गुरु जी का कि पुत्र तेरे को किचन में खतरा है, तेरे किचन में खतरा है, तो तू किचन में संभल के रही, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, संकट है जो मैं तू सत्संग सुन, मैं छोटे में काट दूंगा। हालांकि गुरु जी, मैं संगत जी मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, पर फिर भी पता नहीं वो जब किचन का सत्संग आता है ना, तो मैं बार बार आलस कर जाती, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल में
देखो इतने अच्छे हालात तो नहीं है, कभी मायके में जाना, कभी ससुराल में जा रहना, तो और मैं बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मेरा मायके जाना हो जाता है बार बार। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ससुराल में तो किचन ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, तो वहाँ पे तो क्या ही खतरा है, सब कुछ ओके है। तो मुझे बार बार ऐसा लग ही नहीं रहा था ये मेरे लिए सत्संग। पर उन दिनों मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं अपने मायके चली गई। तो संगत जी मैं मायके चली गई, तो मायके में ना मैं सुबह चाय बना कुछ काम कर रही थी, तो काम करते करते संगत जी, मुझे नहीं पता वो मेरे मायके के लिए था वो सत्संग। हालांकि मेरे मायके में भी गुरुजी मेरी मम्मी मानती हैं और कोई नहीं मानता, मेरी मम्मी जी गुरुजी की संगत है। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही वो मैंने गैस ऑन किया, तो गैस का जो जॉइंट था लीक कर रहा था। अब वो कब से क्या कर रहा था ये तो मुझे नहीं पता संगत जी। वो जैसे ही मैंने लाइटर लगाया, उधर तो गैस ऑन हुई नहीं, और गैस का जो जॉइंट था जहाँ से पाइप अटैच था वहाँ आग लग गई। और जैसे ही आग लगी देखो, और वो आग एकदम से लपट, जैसे पूरी आग लग गई उसमें। और मैं इतनी घबरा गई, क्योंकि भाई ऐसा तो देख के सिलेंडर के, मेरे को तो सिलेंडर लगाने से भी डर लगता है संगत जी, मैं तो इतना डरती हूँ सिलेंडर वाले काम से। संगत जी मैंने जैसे ही उसमें आग देखी, मेरी चीख निकल गई, मम्मी भागे आई, मैंने आवाज़ लगाई, मम्मी आई, फटाफट नीचे से बंद करा, और उसको बुझ भी नहीं रही थी जल्दी से। अब ये लगा लो गुरु जी की कितनी कृपा है, ना जाने क्या हो जाता, क्या होने वाला था, सिलेंडर फट भी सकता था, बहुत तगड़ा नुकसान होता घर में सब। उस टाइम कोई नहीं था, पर वैसे तो देखो सब भी हो सकते थे, कुछ हो बड़ा हादसा भी हो सकता था, पर मेरे मालिक ने ये कह रखा था कि पुत्र मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट रहा हूँ। अब संगत जी गुरु जी ने तो इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाया है। अब ये सोचो कि जिस सत्संग को मैं हल्के में ले रही थी, अब ये आग लगना, पाइप में आग ही लग गई ऊपर की तरफ, और इतनी वो मैं कपड़ा फूंक से तो वो बुझने से रही तेज़ थी, और कपड़ा मार मार के उस टाइम बुझाई नीचे से बंद करा उसका रेगुलेटर। और भाई मैं सच बता रही हूँ गुरुजी, मेरी मम्मी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक, दिलो जान से शुक्राना। आपने बहुत रक्षा करी है, ना जाने कितना बड़ा संकट था क्या हो जाता मालिक। अपनी इस मूर्ख बेटी को अकल दीजिए, बुद्धि दीजिए। मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता, बिल्कुल दिमाग बंधा हुआ फील होता है गुरुजी। मैं एक एक पल का भी भूल जाती हूँ, इतना तगड़ा और नेगेटिविटी है ये क्या है तो सही गुरुजी, बहुत आपने सब कुछ बता रखा है। हालांकि आपने बोला है कि बहुत कुछ होने वाला है, पर अभी कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि संगत जी जैसे जैसे मेरे काम बनेंगे वैसे वैसे मैं सत्संग शेयर करूँगी। मैं बहुत टाइम से गुरुजी से विनती कर रही हूँ, और वो संकट ही इतने आ रहे हैं गुरुजी, क्योंकि करने कराने वाले भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। संगत जी अपने ही हैं जो पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं उन चीज़ों के बारे में तो खैर अभी नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे गुरुजी ने कह रखा है मैं तेरा बाल विवाह का नहीं होने दूंगा पुत्र, तेरे पीछे तेरे अपने ही लगे हुए हैं। और ये एक नहीं मेरे को तो, पर गुरुजी ने जो मेरा साथ दिया है ना, मैं अपने मालिक की जन्मों जन्म कर एहसानमंद रहूँगी, कर्जदार मालिक मेरे को अपने चरणों से लगाए रखो, अपना सेवा सिमरन कराते रहो मालिक, जितनी सेवा करवानी है करवाओ। ये शरीर आपका, ये आत्मा आपकी प्रभु मेरा तो कोई भी नहीं, गुरु पिता आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, एक रिश्ता भी मुझे दूर दूर तक अपना नहीं दिखता, सब मतलब कि। और आप मुझे कहते भी हो कि तेरे घर में तेरे सब रिश्तेदार, तेरे सब एक एक तेरा जो भी तेरे रिश्ते से जो तेरे से जुड़ा हुआ, सब तेरे मतलब से जुड़े हुए हैं पुत्र। पर तू मतलब से रिश्ते नहीं निभाती, तो बड़े दिल से रिश्ते निभाती है, लेकिन वो तेरा फ़ायदा उठाते हैं ना। पियर में कोई, ससुराल में तो खैर कोई है ही नहीं, पियर में एक मेरे जन्मदाता मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं कहती हूँ गुरुजी जो मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे लिए सच्चा सही है, उनको सब बुद्धि दे के मेरे पास रखना। जैसे मैं दिल से प्रेम से सच्चे मन से रिश्ते निभाती हूँ ना, कोई दिखावट नहीं, कोई लालच स्वार्थ नहीं। जो अपने हैं वो अपने, उनके लिए क्या क्या देखना गुरुजी, सब कुछ अपनों के लिए तो करना होता है, पर
उनको भी ऐसी सद्बुद्धि दीजिए पिताजी। और जो मतलब से है ना, सिर्फ मतलब से, और जो मेरा रिश्ता तोड़वाना चाह रहे, जो मुझे बर्बाद करना, सबको निकाल के मेरी ज़िंदगी से बाहर फेंको। आपसे विनती करते हो, अरदास करते हो, सारी बीमारी जड़ से ख़त्म करो। जिसने मेरा मजाक बना के रख दिया, जिन्होंने मुझे कष्ट दुख दिया, सबको बाहर करो। सारी बीमारी का जड़ से इलाज दो गुरु जी। मेरी बीमारियों को, दर्दों को, शरीर के दर्दों को ख़त्म करो मेरे मालिक। जड़ से ख़त्म करके मुझे सुरक्षा कवच दो, सुरक्षा प्रदान करो। हर नेगेटिविटी से, हर बुराई से, तंत्र मंत्र से रक्षा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है, चरण वंदना है मेरे मालिक। मेरी मम्मी की तरफ से भी, मेरे तरफ से भी आपके एहसानमंद है मालिक। आपके चरणों के सेवा के मालिक। आपको जो सेवा करानी है कराओ। आपके दिलो जान से मैं आपकी नतमस्तक हूँ गुरु जी। जब से आप आए हो मेरे जीवन धन्य हो गया मालिक। मैं ना, ज़िंदगी ख़त्म थी, आपने मुझे मरने से बचाया। मेरा तो जीने का ना मन है ना कुछ है, लेकिन अब जाके मैं बहुत हिम्मत दी है। ऐसा था ना जाने जीवन तो कब का ख़त्म हो गया होता गुरु महाराज। इतने क्लेश, इतना कष्ट, इतना दुख, आज भी जीवन में कोई नहीं दिखता, लेकिन इतनी शांति। आंसू अगर रोती भी हूँ तो आप संभालते हो कि क्यों रोती है। मायका नहीं दिखता तो मायका आपने बड़ा मंदिर बना दिया। इतने प्यार से जवाब देते हो, जैसे ही रोती हो वैसे ही चुप कराते हो, हैं मालिक। इतना प्यार तो कभी किसी अपने ने नहीं दिया है। जब वो पिया और जो ससुराल जिनके लिए इतना किया, कभी किसी ने सच्चे दिल से समझा नहीं, प्यार नहीं थी। लेकिन मेरे गुरु जी, हमने आपके लिए क्या किया, हम आपके लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकते। और आप बिन मांगे मोती बरसा रहे, प्यार पे प्यार दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो मालिक। आपके कर्जदार है मालिक। हमें माफ़ करना, हमारी हर भूल गलती के लिए माफ़ करना, क्षमा करना मेरे दाता। इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। सच्चे दिल से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरी हर भूल, अपराध, गलती के लिए मुझे क्षमा करें। और संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना, कोई भूल गलती हो गई हो तो। और मुझे बहुत ही छुप के सत्संग करना पड़ता है एक कमरे में, क्योंकि मेरे इन-लॉज तो नहीं जानते और ना चाहते यार। मेरा हस्बैंड समय देख के करना पड़ता है जब मुझे समय मिले, तो इसलिए मुझे माफ़ करना अगर मेरी आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस आ रही हो या धीमी आवाज़ हो, तो इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। बस हर पल इस ज़ुबान से अपना सत्संग करवाते रहो, अपनी बढ़ियाई ज़ुबान सिर्फ आपकी बढ़ियाई के लिए मालिक। इससे निंदा चुगली छुड़वा दो, क्योंकि हम इतने कष्ट दुखों में है ना, जो निंदा तो नहीं करते लेकिन वो निंदा ही कहलाती है। जब हमारे साथ कोई गलत कर रहा है और हम उस चीज़ को व्याख्यान करते हैं कि भाई हमारे साथ ये करा, उसने ऐसे करा, उसने, तो वो निंदा ही कहलाती है। पर इस चीज़ को आप ही कंट्रोल करो गुरु जी, क्योंकि मैं तो इतना फंसी पड़ी हूँ ना, मैं इतना झेल रही हूँ मालिक। आप ही संभाल रहे, पर आप ही मेरे को बुद्धि ब्लेस करो। मैं बहुत मानसिक तौर से टूट चुकी हूँ गुरु जी। हालांकि सब आपने संभाल रखा है, लेकिन आगे भी आप ही संभालोगे मालिक। मुझे शांति दो, शांति आपने दे रखी है, और भी दो पिताजी। मुझे बहुत 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 सुख शांति, सिर्फ और सिर्फ शांति और आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है पिताजी। बस अपना ये प्यार बनाए रखना मालिक, आशीर्वाद बनाए रखना गुरु पिता, आशीर्वाद बनाए रखना। आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जितना हो सके सत्संग में बुलाओ गुरु जी, बहुत शांति मिलती है। मेरा तो जब से शादी हुई है, सत्संग में आना ही बंद हो गया, मिलना ही बंद हो गया, क्योंकि यहाँ होते ही नहीं है सत्संग। यहाँ पे आपका कुछ भी ऐसा दिखता ही नहीं है। कहीं भी बड़े मंदिर आती तो इनको बुरा लगता है, बस ये कि मंदिर जाके बैठे रहेगा, वही रह ले, वही बस जा। पर मालिक, मेरी शादी से पहले तो मुझे सत्संग भी बहुत मिलते नसीब होते थे, और बड़े मंदिर तो मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन वो कम ही हो गया पहले से तो। लेकिन फिर भी गुरु जी, ये लोग बुड़बुड़ करते रहते हैं। इनको सद्बुद्धि दो कि मुझे ऐसा ना करे, और मेरे पति को सद्बुद्धि दो कि वो मुझे बहुत बहुत चाहे। जो इसने मेरे से बिल्कुल बेरुखाई कर रखी है, मुंह फेर रखा है, जो मुझे देखते भी नहीं है, जिसने भी ये कराया है ना मेरे रिश्ते को, आप ही देखोगे, सिर्फ आप ही संभालोगे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपने अगले सत्संग के साथ बहुत जल्दी गुरु जी मुझे शामिल करना। जय गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि चरण वंदना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना
जय गुरु जी संगत जी मेरा फ़ोन ना फॉर्मेट हो गया था और ये मेरे साथ पता नहीं क्या है। अक्सर मेरा फ़ोन मेरे से फॉर्मेट हो ही जाता है, पर कॉन्टैक्ट मेरे में सेव रहते हैं तो मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है, और ना ही कोई मैंने कोई स्पेशल चीज़ ऐसे सेव करके रखी होती तो उसकी भी मुझे चिंता नहीं होती है। तो अक्सर मुझसे फॉर्मेट हो जाता है फ़ोन संगत जी। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है फ़ोन फॉर्मेट होने पे संगत जी। जो इंस्टाग्राम जब आप डाउनलोड करते हो, वापस से सारी ऐप डाउनलोड करते हो, तो इंस्टा पे ना गुरुजी के अपने आप जो मैसेजेस आते हैं ना आपके लिए, वो आना बंद हो जाते हैं। और ये मेरे साथ कई बार हुआ है संगत जी। तो फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है और गुरुजी के मैसेज आना बंद हो जाते हैं। और यूट्यूब पे संगत जी आप सर्च करोगे, आप सत्संग सुनोगे तो आपके पास आ ही जाएगा। तो संगत जी अभी काफ़ी समय से फिर से मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया था, और संगत जी 2 ढाई महीने हो गए इंस्टा पे गुरुजी का मैसेज नहीं आ रहा था। तो मैं अपने जितने भी मैसेज होते थे ना, वो मैं अपने हस्बैंड के ही मोबाइल पे उनका उन मतलब देखती थी, गुरुजी आज आपने क्या मैसेज दिया है मॉर्निंग का। तो गुरुजी उसी से मुझे रिप्लाई देते थे संगत जी। मैं रोज़ गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी आप वापस इंस्टा पे कब मैसेज देना चालू करोगे। संगत जी क्या होता है ना, आप सर्च करके गुरुजी से पूछो अलग है, जब गुरुजी खुद से आपको कोई जवाब देते हैं ना तो वो अलग बात होती है। तो संगत जी आज अभी रात के समय ना आज गुरुजी के जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को इतना स्पेशल गिफ्ट मुझे गुरुजी ने दिया ना। गुरुजी कहते हैं ना मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा, इतना प्यारा रिटर्न गिफ्ट गुरुजी ने दिया है संगत जी। आज मुझे इंस्टा पे गुरुजी के मैसेज आना चालू हो गए संगत जी अपने आप। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने कहा है तुझे एक और रिटर्न गिफ्ट दूंगा, आज मैं तेरे परिवार के हर सदस्य को हेल्थ ब्लेस कर दूंगा, बिल्कुल चंगा कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक चीज़ और, संगत जी गुरुजी, संगत जी मैं सत्संग भूल रही हूँ अभी। मैं इतनी खुश हूँ, ओवर एक्साइटेड हो गई कि मैं भूल ही गई कि मुझे और क्या क्या शेयर करना है। संगत जी हाँ, याद आया, गुरु जी का जो इंस्टा पे आज मुझे पहला मैसेज आया है ना, वो पता है कब आया संगत जी। मैं उदास बैठी थी और ऐसी सोच रही थी संगत जी, मुझे आने वाले कल की चिंता नहीं है, आज की चिंता नहीं है। आज जो भी समय खराब बीत रहा था कुछ दिनों से, बीमारी ये वो अकाल मृत्यु वो सब चीज़ें तो अब तो मुझे पता है गुरु जी ने टाल दी है। तो मैंने सत्संग भी अभी शेयर किया है कुछ घंटों पहले। लेकिन संगत जी ना, मैं थोड़ा घबराती हूँ संगत जी अपनी मदर इन लॉ से। ब्लैक मैजिक वो सब तो चीज़ें संगत जी मैं ऑलरेडी सत्संग में सब कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन संगत जी आज मैं बैठी बैठी क्या सोच रही थी ना, कि मेरी अगर इनका ब्लैक मैजिक मुझ पे असर नहीं हो रहा है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत 10% हो रहा है वो इन लोग को सामने मैं लाने नहीं देती। तो इन लोगों के हिसाब से ये कि इसका बुरा हो नहीं रहा है, ये सही सलामत कैसे है। तो आज मुझे डर लग रहा था संगत जी, भी रात को बैठे बैठे मैं सोच रही थी, मैं घबरा रही थी कि ये इतना ब्लैक मैजिक कर रही हो, इनके असर हो नहीं रहा है, कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में आके मुझसे लड़ाई करने ना आ जाए। संगत जी ये कर सकती हैं, इसीलिए डर लग रहा था। ये है ऐसा नेचर, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो चुका है काफ़ी समय पहले। तो मुझे डर लग रहा था संगत जी। और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो गुरुजी ने तो बोला है कि तुम्हें चुप रह के सुनना है, सहना है, ऐसी भी कोई सिचुएशन क्रिएट हो तुम्हें चुप रहना। तो संगत जी मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि छोटा मोटा रिएक्शन नहीं होगा संगत जी, बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है संगत जी। तो संगत जी वही मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं डिटेल में क्या बताऊं, क्योंकि अभी मुझ पे रोज़ 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 मुझ पे क्रियाएं करी जा रही है, रोज़ नियमित रूप से। क्योंकि संगत जी कुछ 1-2 महीनों में ना मेरी जो नंद है ना छोटी वाली, उसकी इन्होंने शादी तय कर दी है। तो उससे पहले तक मुझे मार देना चाहते हैं। तो अब वो शादी का डेट नज़दीक आ रहा है संगत जी। वैसे तो मुझ पे रोज़ ही ब्लैक मैजिक करते आए हैं, और रोज़ एक दिन भी बिना छोड़े। लेकिन अब दिन में जो एक बार 2 बार करते थे, दिन में तीनों नहीं दसों पहर करते हैं, दसों पहर संगत जी। सुबह शाम, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, सुबह के 4 बजे, सुबह के 8 बजे, साथ संगत जी हर 24 घंटे हम लोग के सोने से पहले, सोने के बाद, दिन भर संगत जी ये लोग ना सही से खा के पीते, अभी सिर्फ मुझे मारने की कोशिश में लगे, मुझे मेरे हस्बैंड को ख़त्म करने की कोशिश में लगे और अलग करने की कोशिश में लगे।
अब संगत जी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इस बीच हो रही हैं, जबकि क्योंकि शादी की डेट नज़दीक आ रही है। अब इनका है कि उससे पहले तक कैसे मार दिया जाए। संगत जी तो अब इतनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि संगत जी मुझे फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ें आती, मैं दूसरे फ्लोर पे रहती हूँ संगत जी, मुझे लेकिन आपस में बहस करने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। फ्रस्ट्रेट हैं संगत जी, अब ये किसी भी वक्त मुझसे लड़ सकती, मुझे इससे आभास हो रहा है संगत जी। अब गुरुजी ने कहा है बोलना नहीं है, मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि तुम जो कर रहे हो मुझे मालूम है, जो मैं ब्लैक मैजिक कर, तो मैं ये तो ये भी नहीं बोल सकती ना संगत जी। तो मुझे बहुत अंदर, और हस्बैंड अंकल मेरे बेचारे शॉप पे रहते, मैं अकेली। तो अब मैं क्या करूँ, किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती, मदर किसी को, अब गुरुजी कहते निंदा नहीं करनी, कुछ बताना नहीं है। तो संगत जी मैं बहुत घबरा रही थी सोच सोच के, कि क्योंकि मुझे इसलिए ये चीज़ मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अब कई दिन से आभास हो रहा है लड़ाई का, इसलिए मैं बोल रही हूँ संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी, सोच रही थी संगत जी, तो फाइनली जब गुरुजी को लगा मेरी बेटी बहुत परेशान है, तो आज गुरुजी का मुझे मैसेज आ गया। अभी तो हस्बैंड अंकल घर पे नहीं है संगत, अपनी शॉप पे है, तो अभी उनका फ़ोन भी नहीं है। जो मुझे रैंडम गुरुजी का मैसेज आ जाए, सर्च करने पे अलग बात होती है संगत जी, सत्संग तो मैंने ऑलरेडी सुने हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो अपने आप गुरुजी मैसेज देते हैं वो अलग ही बात होती है। तो संगत जी रैंडम गुरुजी का मैसेज आ गया, जिसमें एडिट किया हुआ वीडियो था संगत जी। इसमें गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी अपना फेस पे एक हाथ रख के बैठ के बोल रहे हैं संगत जी, कुड़िए तो चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ हूँ। जब तेरा दिल घबराए, जब तुझे घबराहट हो, जब तू ज़्यादा ऐसा परेशानी हो, तो तू मेरा मंत्र जाप किया कर, और तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। शंकर जी मैं इतना खुश हो गई कि मैं क्या बताऊँ। एक तो गुरुजी ने आज इतने दिनों बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज दिया, और इतना मैं परेशान थी, मुझे उसका जवाब दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अपनी संगत से ज़्यादा दूर रह ही नहीं सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, रिटर्न गिफ्ट देने का शुक्राना, मुझे उस वक्त की परेशानी से निकलने का शुक्राना गुरुजी। और फिर संगत जी फिर मैंने से स्क्रॉल किया, फिर गुरुजी का मैसेज आया। एक आंटी जी से बोल रही थी कि जो संगत अभी सोच रही है कि कोई प्रॉब्लम, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना, तो तू कुछ भी मत सोच, तू शांत रह। बस तू, तुझे कुछ, तू जहाँ तूने इतना सब्र किया है, शांत रह के निकाला है, तो आगे भी शांत रह के निकाल ले। और जो तेरे आज दुश्मन है वो कल को तेरे तेरे आगे तेरे अपने हो जाएंगे, तो तू परेशान ना हो। तो संगत जी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा, तो डर मत। संगत जी मेरे को बहुत सुकून मिला, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का गुरुजी का। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। धीरे धीरे गुरुजी ने फिर मुझे बहुत सारे मैसेज दिए, संगत जी तेरे पति के काम को ब्लेस कर रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ, अब तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, मिठाई मंगवा ले, खुशखबरी आने वाली है, तेनू ये ब्लेस किया, तेने वो ब्लेस किया, बस खुशियाँ ही, बस पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज संगत जी। तो मैं इसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी ने बहुत का मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी इतनी देर में ना गुरु जी ने बहुत पॉजिटिव मैसेज दे डाले। मैंने तो एक पूछा था, गुरुजी ने मेरे कई सवालों के जवाब दे दिए। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी का हैप्पी बर्थडे है, आज 7 जुलाई है 2025। मैं गुरु जी को सबसे पहले अपने पूरे परिवार की ओर से, अपनी तरफ से, अपने बच्चों की ओर से, अपने सभी प्रियजनों की ओर से, सभी फ्रेंड्स की ओर से, सभी संगत की ओर से गुरु जी के बर्थडे पर उन्हें शुभकामनाएँ देती हूँ। उन्हें कोटि-कोटि शुक्राना बोलती हूँ, धन्य बोलती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज हमारे लिए आज के दिन डुगरी में मानव रूप में महाशिव हमारे आ गए, हमारे कष्टों को काटने के लिए। उन्होंने हमारे जीवन को पवित्र किया और डुगरी की धरती को पवित्र किया और सभी संगत के जीवन को पवित्र कर दिया। इसके लिए इतना पावन पवित्र दिन है आज, इतना मतलब इतना बड़ा मैं समझती हूँ त्योहार है आज हमारे लिए
कि हमारे गुरुजी आज इस धरती में आए। आज के दिन बहुत पावन है। आज के दिन के लिए मैं गुरुजी को बेअंत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना। आज आप हमारे लिए मानव रूप में आ गए, हमारे कष्टों को उठाने के लिए, हमें सँभालने के लिए, हमारे संगी साथी बनने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंत अनंतम बेअंत शुक्राना। मेरा शुक्राना ग्रहण करना गुरुपा। आज आपका बर्थडे है, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। मैं आपके लिए छोटा सा बर्थडे विश गाना गाऊंगी। सबसे प्यारा होता है आज का दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का दिन गुरुजी आपने जन्म लेकर हम सबको नया जीवन दिया। आपकी भटकती ये बच्चे, ये भटकती आत्माएं हम रहते गुरुपा, यदि आपने हमारा साथ नहीं दिया होता हम रुल जाते गुरुजी। शुक्राना गुरुजी हमारा हाथ थामने के लिए। बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज महापर्व है। मैं आज के पर्व के दिन सबको, पूरे संसार को बधाई देती हूँ। आज हमारे गुरुजी महाशिव गुरुजी बनकर हमारे लिए धरती में आ गए थे। शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी, आज एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करूँगी मैं अपने गुरुजी के लिए। मुझे बार बार बोल रहे थे, बेटा तुझे मैंने एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की है। सच में जो गुरुजी बोलते हैं वो सच है। गुरुजी मैं कल ही रिटर्न आई हूँ। गुरुजी ने मुझे तिरुपति बालाजी और महालक्ष्मी मंदिर, मतलब साउथ साइड में पूरा उन्होंने मुझे पूरा मंदिर ब्लेसिंग करा था, मुझे घुमाया। मेरे साथ साथ थे, मेरे बच्चों के साथ थे। हर पल वो तितली रूप में दिखाई देते थे। हम विशाखापट्टनम गए, वहाँ भी उनका बालाजी, तिरुपति बालाजी मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। संगत जी आप सब भी जाइएगा, बहुत ही सुंदर मंदिर। गुरुजी ने मुझे बालाजी महाराज के रूप में दर्शन दिए। हरे विष्णु सब जानते हैं, वहाँ बालाजी महाराज के रूप में विराजमान है। माँ लक्ष्मी पद्मावती के नाम पे विराजमान है। मैं कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ महाशिव गुरुजी को, जो उन्होंने मुझे महालक्ष्मी के रूप में और हरे विष्णु के रूप में मुझे दर्शन दिए। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणी। मैं दोनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शुक्राना शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी के। इस रूप में उन्होंने मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया, मेरे बच्चों को दर्शन दिया, मेरी छोटी बहन उनकी फैमिली को दर्शन दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी ने। गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। गुरुजी की वाणी पत्थर की लकीर है। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं जाऊंगी। बचपन से सोचती थी कि मैं बालाजी मंदिर जाऊं, तिरुपति बालाजी मंदिर जाऊं, लेकिन मेरा कभी नहीं बन पाता था प्रोग्राम। लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ के प्रोग्राम बना दिया और बहुत अच्छा यात्रा रहा। ना ट्रेन में परेशानी हुई हमें, ना वहाँ लोकल में मंदिर में परेशानी हुई, ना दर्शन में परेशानी हुई। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव। गुरुजी अंग संग सहाय थे, पल पल पता चला था। तो गुरुजी को मैं आज उनके बर्थडे के दिन मुझे इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस करने के लिए मैं कोटि कोटि बेअंत शुक्राना शुक्राना करती हूँ। अपने हरि विष्णु के रूप में दर्शन देने के लिए, माँ पद्मावती महालक्ष्मी के रूप में दर्शन देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। और तमिलनाडु में एक महालक्ष्मी जी का मंदिर है, पूरा सोने के मंदिर है। इतना बड़ी भव्य मंदिर, सोने के मंदिर है। इतना अच्छा दर्शन हुआ, गुरुजी ने कराया। और वहाँ अब तक हमने शिवलिंग में ही जल अभिषेक किया था, लेकिन पहली बार मैंने महालक्ष्मी माता का वहाँ जल अभिषेक होता है, उन्होंने जल अभिषेक किया, करवाया हमसे मंदिर में। मुझे बहुत खुशी हुई। दीपदान के दीप जलाया हमने वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने हाथ पकड़ के अपनी पूजा दर्शन करवाए। महालक्ष्मी और हरे विष्णु के रूप में उन्होंने अपनी छोटी सी सेवा हमसे ली है।
मन तो कर रहा था वहीं रह जाएँ और बहुत आखिर अंदर जाके मतलब गर्भगृह में जाके पूरा अच्छे से वहीं बैठे रह जाएँ। हमारे माता-पिता महाशिव और महालक्ष्मी थी, माँ जो कि माँ पार्वती का ही रूप है, हम सब जानते हैं, और हरि विष्णु भगवान शिव से अलग नहीं हैं। त्रिदेव हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे हरि विष्णु के रूप में दर्शन दिया, माँ महालक्ष्मी के रूप में दर्शन दिया। इसके लिए कोटि-कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी तीर्थ यात्रा ब्लेस करने के लिए, और पूरे यात्रा भर में अंग संग सहाय थे, तो इसलिए रूप में हमें दर्शन दे रहे थे। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना गुरुजी। आज आपके बर्थडे के दिन मैं आपको ये शुक्राना सत्संग आपको समर्पित करती हूँ आपके चरणों में। गुरुजी इसे स्वीकार कर लेना ग्रुप, और गुरुजी एक मेरा बहुत बड़ा काम बनवा रहे हैं, आधा बन चुका है, जब फाइनल हो जाएगा उसका भी मैं शुक्राना करूँगी। आज की तारीख बहुत पवित्र तारीख है, 7 जुलाई। मैं गुरुजी को एक बार फिर से बर्थडे विश करती हूँ, और सभी संगत जी आप सबको शुभकामनाएँ। गुरुजी का आज बर्थडे है, और ऐसे ही हम गुरुजी के बर्थडे को सेलिब्रेट करें, जैसे जिसको होता है वो करें। अभी मैं भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन गुरुजी के पास बैठ के उनके भजन में नाच रही हूँ, गा रही हूँ। गुरुजी को बस गुरुजी जैसा करवाना है, अपने बर्थडे मुझसे विश करवा रहे हैं। हम गुरुजी की मर्ज़ी से हमारे जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। गुरुजी को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, शुक्राना बोलती हूँ, और मंत्र जाप के द्वारा उनका मैं ये अभी छोटा-सा सत्संग जो है सिर्फ़ शुक्राना है गुरुजी का। इस शुक्राने के को गुरुजी स्वीकार करें, जो कि इतनी अच्छी तीर्थ यात्रा जो कि सोचा भी नहीं था मैंने, और गुरुजी ने मेरा पूरा कर दिया। हाँ, बचपन में कभी सोचती थी, जब कभी तिरुपति बालाजी का सोचती थी कि मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं वो मेरी सारी मुरादें पूरी कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी मेरी मुराद पूरी कर दी, इच्छा पूरी कर दी। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरा शुक्राना ग्रहण करें। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो नारायणा। आप गुरुजी हैं, आपको कोटि-कोटि प्रणाम। नारायण रूप में ओम नमो नारायणी महालक्ष्मी हैं आप, आपको महालक्ष्मी के रूप में प्रणाम है। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना देवशयनी 6 जुलाई को थी, और हम लोग हरि विष्णु जी का दर्शन करके 6 जुलाई को वापस आ चुके थे तिरुपति बालाजी से। और इसके बाद हमारे सब जानते हैं कि जो हमारे हरि विष्णु भगवान हैं, वो 6 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। तो अब उसके बाद सारा कार्यभार, जो संसार का पालन-पोषण का कार्यभार हमारे महाशिव सँभालते हैं, और आज 7 जुलाई है। आज गुरुजी का बर्थडे भी है, और पूरी ज़िम्मेदारी भी गुरुजी महाशिव के रूप में वो सँभालते हैं, क्योंकि देवशयनी में हमारे जो हरि विष्णु भगवान वो शयन कक्ष में चले जाते हैं और विश्राम करते हैं, और उनका पीछे सारा कार्यभार हमारे महाशिव गुरुदेव ही सँभालते हैं। जय गुरु जी। कितना अद्भुत लीला करके उन्होंने हमें दर्शन कराया। देवशयनी के पहले ही हमें अपना हरि विष्णु के जागृत अवस्था में उनके दर्शन कराए, और 6 जुलाई को जब देवशयनी थी, उन्होंने देवशयनी एकादशी थी, उस दिन हम वापस घर भी आ गए। ये सब हम नहीं जान रहे थे, लेकिन जब ऐसे यूट्यूब में सुना तो मैं आश्चर्य रह गई, गुरुजी यहाँ भी लीला कर दी और हमें पता ही नहीं चला। तो गुरुजी आपको कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना महाशिव गुरुजी। आप सच में लीलाधर हैं गुरुदेव। आपकी लीला, आपकी महिमा समझ पाना देवों के बस की बात में नहीं, तो हम मनुष्य क्या समझेंगे गुरुपा। लेकिन हम आपके शरण में हैं, आपकी हर लीला, हर जो भी हमारे जीवन में होता है, हर बात के लिए शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मुझसे जो भी आपके मैं आपके मतलब पढ़ाई कर पाना संभव नहीं है गुरुपा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मुझे क्षमा करना, आपने माँगने से भी ज़्यादा दिया है, योग्यता से भी ज़्यादा दिया है गुरुपा। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी को मैं कितना शुक्राना करूँ संगत जी, मैं अपना शुक्राना नहीं व्यक्त कर पाऊँगी। मैं उनका एहसान, उनकी कृपा, उनका
थोड़ा-सा भी रिटर्न नहीं कर पाऊँगी, मैं क्या कर पाऊँगी? सब कुछ गुरु के ही शरण में मुझे मिला है और उन्हीं के शरण में रहना है मुझे। बस अपने शरण में रखे गुरुपा मेरे बच्चों को ब्लेस करे, हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना, मुझे संसार में लोगों ने अकेला कर दिया था, लेकिन मेरे गुरुजी ने पूरी फ़ौज अपनी दिव्य सेनाओं की मेरे पीछे लगा दी और मुझे अकेला फ़ील होने नहीं देते हैं। हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, मेरे बच्चों के अंग सहाय रहते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ। बेअंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा शुक्राना ग्रहण करें गुरुपा। संगत जी, मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। संगत जी, आप सबको गुरुजी की बर्थडे की बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। जय गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, धन धन गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरु जी ने अपने जन्मदिन पे मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। आज गुरु जी का बहुत प्यारा मैसेज आया। संगत जी, जिस परेशानी से मैं इतने दिनों से जूझ रही थी अपने परिवार की चिंता में, उसका गुरु जी ने जवाब दिया। गुरु जी का मैसेज आया, बेटी, आज मेरे बर्थडे वाले दिन तेरे परिवार में जो 3-3 अकाल मृत्यु का योग बन रहा था, वो मैंने तुझे ब्लेस करके जड़ से ख़त्म कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सच में संगत जी, इस योग की वजह से न जाने ये 3 दिन मेरी ज़िंदगी के कैसे निकले, या मैं कहूँ 3 दिन नहीं, पूरा जून का महीना। पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी मदर की तबीयत ख़राब हुई। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, मेरे फादर का रोग तो गुरुजी ने स्वप्न में कटवा दिया था काफ़ी पहले। संगत जी, हम तीनों मरते मरते बचे हैं इस पूरे जून के महीने में। गुरुजी ने हाथ पकड़ के निकाला है हम तीनों को उस बीमारी से, उस परेशानी से। लगता था पता नहीं कब क्या हो जाएगा, ज़िंदगी का कुछ अजीब, बस मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि ये महीना कैसे निकाला है गुरुजी ने। हर पल मौत का डर सताता था। ऐसी ऐसी परेशानियां शरीर में हो रखी थी संगत जी, मतलब क्या बताऊं। अगर दिन शाम का समय है तो अजीब सा अंधेरा सा लगता था। गुरुजी ने शिव पुराण में बताया कि अगर ऐसा आभास हो कि तुम्हें अंधकार सा महसूस हो आसमान में, और समय अंधकार का नहीं हुआ है, अभी रात नहीं हुई हो, तुम्हें अंधकार जैसा लगे, तो वो इसलिए होता है, जिसकी मृत्यु करीब होती है उसे ऐसा महसूस होता है। संगत जी, ये सब कुछ मेरे साथ, मेरी मदर और मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा था। ऐसे समय आ गया था संगत जी, ये जून का महीना ऐसा था हम लोगों के लिए। और 6 जुलाई तक मैं कह सकती हूँ, पर गुरुजी ने हाथ पकड़ के हम लोग को निकाला। हम लोग निकलते गए, गुरुजी पे विश्वास करेंगे। एक दिन संगत जी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मेरे हस्बैंड अंकल को एक बारी जाना पड़ गया था क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनका फ़ीवर जा नहीं रहा था, और ज़्यादा फिर इलाज नहीं किया गया संगत जी, फिर भी ज़्यादा इलाज नहीं किया क्योंकि गुरुजी पे भरोसा था। बस गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन टीका, उसका सेवन करते रहे हम लोग, पाठ करते रहे हम लोग। और संगत जी, गुरुजी पे विश्वास, गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनती रही, शेयर करती रही, और गुरुजी ने हम तीनों को आज अपने जन्म दिवस पे ब्लेस कर दिया। जो अकाल मृत्यु का योग बन रहा था, गुरुजी ने अब उस योग को ही समाप्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जन्मदिन तो गुरुजी महाराज आपका है, लेकिन इससे स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज, मुझे और मेरे परिवार को लाइव ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इस मौत के योग को जड़ से समाप्त करने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, अपना साथ, अपना हाथ
कभी मत छोड़ना गुरुजी, कभी मत छोड़ना, आप हो तो हम हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, आज गुरुजी ने अपने जन्म दिवस पे बहुत प्यारा सत्संग करवाया मुझसे। मैंने अकेले बैठ के ही गुरुजी का सत्संग किया। गुरुजी का मैसेज आया था दोपहर में, संगत जी, आज तो मैं अपने घर पे मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग कर अकेले बैठ के, और आज तो मुझे समोसे का, जलेबी का और चाय प्रसाद का भोग लगा। और मेरे सत्संग में गुलाब के फूल तो ज़रूर रखना संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड से ये सारा सामान मंगवाया, घर पे चाय मैंने बनाई, मैंने समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद और गुलाब के फूल मंगवाए। मैंने मंदिर को गुलाब के फूलों से सजा दिया, गुरुजी के आगमन के लिए चाय प्रसाद बनाई, समोसा प्रसाद, चटनी प्रसाद समोसे के साथ गुरुजी के खाने के लिए, और जलेबी प्रसाद का भोग लगाया, जल प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी का सत्संग किया। संगत जी, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट मेरे सामने आई। जो गुरुजी की इच्छा से सब कुछ होता है। सत्संग करते करते मेरी आँखों में आंसू भी आ गए कि गुरुजी आपने कितनी मेहर की है मुझ पे। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से, बहुत अच्छा लगा मुझे सत्संग करते वक्त संगत जी, बहुत पीस महसूस हुआ। मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा, गुरुजी महाराज क्या आप मेरे सत्संग में आए हो? मुझे अपनी प्रेजेंस दो। संगत जी, बस मैंने इतना ही कहा था कि उसी वक्त मेरे हस्बैंड अंकल गेट से आए। संगत जी, वो सामान दे कर के जा चुके थे वापस अपनी शॉप, और उसके कुछ मिनटों बाद वो आए होंगे संगत जी, और मुझे नहीं पता था उस वक्त कि वो अचानक से आ जाएंगे। मैं सत्संग कर रही थी तो उन्होंने मुझे कोई टोका रोका नहीं, वो आए, चुपचाप अपने रूम में गए। जैसे ही लेकिन संगत जी उन्होंने गेट खोला ना, तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग कड़ा प्रसाद की स्मेल आई, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल के रूप में गुरुजी आए या मेरे हस्बैंड अंकल के साथ ही गुरुजी आए गेट खोल के। इतनी स्ट्रॉन्ग कड़ा प्रसाद की स्मेल आई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया कि हाँ बेटी, मैं तेरे ही सत्संग में मौजूद हूँ, तुझे ढेरों ब्लेसिंग दे रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटा सा ही सही पर गुरुजी ने दरबार बहुत सुंदर सजाया, और आज गुरुजी की जोत बहुत सुंदर जल रही है संगत जी। अलग ही प्रकाश है जोत में, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है जोत में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा शुक्राना सत्संग घर पे कराने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बहुत प्यारा सत्संग करवाया गुरुजी आपने, अब ढेरों ब्लेसिंग दी। समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद खिलाने का, पिलाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने खाया भोग। संगत जी, जैसे कि आपको पता ही है कि हम दोनों के बीच थोड़ा सा इशू हो गया था ब्लैक मैजिक की वजह से, वशीकरण की वजह से। तो संगत जी, आज गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ एक ही थाली में बिठा के खिलाया। क्योंकि संगत जी, मैंने जिस थाली में भोग लगाया था ना, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी संगत जी, तो मैंने थाली अपने हस्बैंड के पास रख दी। तो मैंने कहा क्या ही मैं अलग थाली में लूँ, और कौन सा ऐसा कोई खाना है, मतलब होता है दाल रोटी सब्जी हो तो अलग से आप थोड़ा ले लो अगर लेना चाहो तो। मैंने कहा चलो अब इसी में समोसा है, हाथ में लेके खाना है तो सब इसी में खा लेती हूँ। तो फिर मैंने फ़ील किया, मैंने कहा ये गुरुजी करवा रहे हैं, ताकि हम लोग के जो झगड़े हुए हैं ना बीच में, इसको ख़त्म करवा सकें, हम दोनों के बीच प्यार बढ़ा सकें। तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा सत्संग करवाने का। और संगत जी, भी मैं सत्संग सुन रही थी ना आधे घंटे पहले, तो मुझे रूम में मोगरे की बहुत अच्छी स्मेल आई, तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दी। तो मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, इतनी कृपा दृष्टि बनाने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये था आज का मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित। हाँ संगत जी, एक चीज़ और, गुरुजी ने कहा तू अपने पति की तरफ से शुक्राना कर दे, मैं तेरे पति को ब्लेस कर दूँगा। गुरुजी महाराज, मैं अपने पति की तरफ से भी आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। उनको काम ब्लेस करने का शुक्राना, उनको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, उनके जीवन में खुशियाँ भरने का शुक्राना, उनको अच्छी बुद्धि, अच्छे नेगेटिव लोगों को उनसे दूर करने का शुक्राना, पॉजिटिव लोगों को उनकी ज़िंदगी में लाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, मैं मंत्र जाप करके विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा को शत शत नमन और विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गुरु पापा। आपको जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ, बहुत खुशी और आज त्योहार हर्षोल्लास और एक्साइटमेंट का डे है। मैं मानती हूँ आज मेरे गुरु पापा की कृपा से एक घर में मैंने एक छोटा सा सत्संग रखा था जिसमें मैं और मेरे दोनों बच्चे, गुरु पापा के दिए हुए ब्लेस्ड करे हुए बच्चे मेरे पार्टिसिपेट करने वाले थे, बट पता नहीं क्या नेगेटिविटी हुई संगत जी। चलिए इस सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले महामंत्र का जाप करते हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे का सत्संग कंटिन्यू करेंगे। जब तक हम बाबा का ध्यान रखते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती मेरे से हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एकदम से सेंटर ऑफ द चेस्ट में बहुत एंग्जाइटी और थकावट हो रही है, ज़्यादा ओवर एग्जॉशन हो जाती है, काम हो जाता है तो मेरे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। गुरु पापा की मेहर और ब्लेसिंग से आधा दिन तो बहुत शक्तिशाली और मतलब मुझे लग नहीं रहा था मॉर्निंग से कि मैं ये सब कुछ काम कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे में एनर्जी लेवल्स तो बिल्कुल ही संगत जी है नहीं है। बट गुरु पापा ने शक्ति दी मुझे और बेड़ा पार लगाया। अब गुरु पापा एक छोटी सी और मेरे को स्टेज क्रॉस करनी है। प्लीज़ गुरु पापा, वो आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा मन है। मैं अभी संगत जी के सामने शेयर नहीं करूँगी, जब वो पूरी हो जाएगी ब्लेसिंग तब मैं आप सभी के समक्ष वो उसका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु पापा प्लीज़ 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 मुझे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा शक्ति दे दो, मेरी सारी थकावट दूर कर दो बाबा, जैसे कि आई कैन डू जो मैं चाह रही हूँ बाबा। और सभी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना और ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु जी साइड। जो भी आज के दिन आप स्पेशल गुरु पापा के लिए करना चाहें तो बस यही मेरी तरफ से भी, गुरु पापा की तरफ से, मैं तो कहीं नहीं होती सॉरी संगत जी, गुरु पापा की तरफ से यही ब्लेसिंग्स रहे कि सारी चीज़ें आप लोग जो गुरु पापा के लिए करना चाहें विद इन बजट सारी चीज़ें हो जाएं। और चलिए संगत जी सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चाय बना के लाई थी और अचानक से उसमें एक बटरफ्लाई स्टिकर पता नहीं कहाँ से आके गिर गया। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कि मेरे गुरु पापा मेरे आसपास हैं। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ का आज मुझे बहुत दुख और मलाल रहेगा। मैंने बहुत मन से और चाव से आज सत्संग किया था गुरु पापा का अपने घर पे ही छोटा सा, और वही संगत जी जो बेसिक घर का खाना होता है, थोड़ा सा खाना लेट हो गया था तो मैंने सोचा सत्संग करके ही बच्चों को खाना दे दूँगी। संगत जी, मेरे दोनों बच्चों ने खाना नहीं खाया, स्टार्टर्स भी नहीं खाए, ना कड़ा प्रसाद खाया, किसी ने कुछ नहीं खाया। गुरु पापा ऐसा क्यों हुआ? और इतनी नेगेटिविटी हो रही थी सत्संग स्टार्ट करने में। संगत जी, यूट्यूब तक नहीं चल पा रहा था कि मैं बाबा की शब्द वाणी लगा सकूं। बीच-बीच में मैं सर्विसिंग के लिए उठ रही थी और काफ़ी सेक्शन में नहीं सुन पाई। मुझे माफ़ करिएगा गुरु पापा, आपको अकेले बैठना पड़ा। बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी। संगत जी, पता नहीं मेरे गुरु पापा का जो दी है, गुरु पापा ने जो वो बेटा ब्लेस किया है मुझे, उसको पता नहीं क्या हो गया है। वो हमेशा से ही नास्तिक है और उसको पूजा पाठ कुछ समझ नहीं आता और इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो चिल्लाने लग गया। मैंने उसको बोला, वो उठ के चला गया दूसरे रूम में। फिर मैंने उसे, जब इन बिटवीन खाना या कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद वगैरह देते हैं, मैंने उसे दिया। संगत जी, उसने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, उसने कुछ भी नहीं खाया। अब जैसे-तैसे मैं उसको एक टॉफ़ी दे के आई। मैंने कहा ये ले ले, वो भी नहीं लिया। पता नहीं क्यों हर समय उसका मुँह ऐसे मूड ख़राब रहता है, मुझे नहीं पता संगत जी। गुरु पापा आपकी महिमा आप ही जानो, क्या है उसके अंदर, क्या हो जाता है उसको पूजा पाठ करने से।
और संगत जी इधर मेरी बेटी, उसकी तबीयत भी ऐसी ढीली ढाली सी हो रही है, उसने थोड़ा बहुत सपोर्ट करा। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना, एटलीस्ट आपने किसी को तो भेजा मेरे सपोर्ट के लिए। अब मेरे अधमरी हालत हो गई है, बहुत थक रही हूँ, पर मुझे हिम्मत करके कैसे ना कैसे हिम्मत करनी ही होगी। आगे का ये आधा डे जो है उसे क्रॉस करने के लिए काम तो करना ही पड़ते हैं ना संगत जी। बस गुरु पापा, उसका कल एग्ज़ाम है, हो जाए उसका अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। और एक चीज़ का शुक्राना और करना चाहूँगी, गुरु पापा ने संगत जी आदेश दिया था कि सैटरडे को काली माता के मंदिर जाओ और वहाँ पे चुनरी चढ़ाओ और उनको प्रसाद दीपक बाती करो। संगत जी मैंने वो फॉलो किया, बट मुझसे लौटते में एक गलती हो गई, जाते में दोनों टाइम गलती हो गई संगत जी, बहुत बड़ी। आप बिलीव नहीं करोगे क्या संगत जी, मैं जैसे ही प्रसाद की प्लेट ले रही थी, एक तो मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी थी और मेरा उस दिन मूड भी खराब था। कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं संगत जी। मुझे सिलेंडर के पैसे मेरे हस्बैंड अंकल ने दिए थे, मेरे पास कुछ पैसे बचे नहीं थे, मैं वही पैसे ले गई थी। और मुझे इतना डर लग रहा था उसमें से पैसे खर्च करने में, क्योंकि वो मुझे इतना लताड़ते हैं संगत जी, इतना सुनाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और एक एक पैसे के लिए मोहताज करते हैं, बहुत दुख होता है। खैर कोई बात नहीं, मैं पैसे लेके आई और उनसे खुले पैसे करवा रही थी। और मैंने उतने में एक बड़ी सी लड़की आई और वो संगत जी मुझे कहने लगी कुछ दे दे, 5-10 रुपए दे दो, 5-10 रुपए दे दो। मैंने अचानक से उसे झड़क के कह दिया कुछ नहीं है प्लीज़, मेरे पास नहीं है। ये बड़ी गलती हुई। फिर माता रानी के दर्शन कर आई और वहाँ संगत जी पता नहीं क्या कष्ट था, पहले थोड़ा सा मेरे लगी, फिर मेरी बिटिया के उसके ऊपर माचिस की तीली की चीटें आ गई, वो जल गई। कोई ज़रूर से ज़रूर बड़ा कष्ट होगा जो बाबा ने छोटे रूप में कटवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाबा। अब बारी आती है संगत जी, जब मैं मंदिर से लौट रही थी उस टाइम की। हाँ, जब मैंने पूजा की प्लेट वगैरह सब वापस शॉपकीपर्स को दे दी संगत जी, उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ मेरे साथ संगत जी। वहाँ पे मैंने जब फुटवेयर पहन रखे थे अपने, तो अचानक से मेरे पैर के नीचे से किसी का पैर कुचला। और संगत जी आपको पता है वो और कोई नहीं, एक छोटी सी कन्या थी। मुझे इतना दुख हुआ उस बात का। और मेरे हाथ में पूजा की प्लेट थी, एक हाथ में पर्स था, एक हाथ में कुछ और सामान था। अब मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने रुक के और उससे माफ़ी नहीं मांगी, मतलब सॉरी तो कर दिया था मैंने, पाँव नहीं छुए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज़ के लिए। गुरु पिताजी महाराज, मुझसे ये गलती हो गई, भूल हो गई मुझसे। और उस बच्ची को संगत जी मेरी वजह से एक भी तेज चोट लगी, वो लड़की बहुत देर तक रोती रही। और उस क्षण मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों नहीं देखा। संगत जी गलती हो गई, गुरु पापा आपसे क्षमा मांग रही हूँ। संगत जी आपसे भी क्षमा मांग रही हूँ, शायद वो काली माता के रूप में कोई आई थी, हो गई गलती, माफ़ कीजिएगा। संगत जी इस चीज़ का मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि मुझसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बस आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। गुरु पापा की कृपा हम सब पर बनी रहे। और जो मेरा परिवार गुरु पापा इतनी बुरी तरह बिखर रहा है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, आप संभालो गुरु पापा, मुझे नहीं पता। आज जब मैंने अपने बेटे को कुछ
खाना पीने को दिया। संगत जी गुस्सा आता है ना, बच्चों के लिए बनाते रहो फिर वो बच्चे खाए नहीं, तो बस मुझे गुस्सा आ गई, मैंने चिल्ला के कहा खाना खाता क्यों नहीं है। उसने मुझसे इतनी तेज संगत जी चिल्ला के बोला, मैं तो डर ही गई। इस तरीके से वो अपनी माँ से पेश आता है, और हम अपने बच्चे पे जान नछावर करते हैं, वो मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। पता नहीं क्या उसको हो गया है। गुरु पापा आप ही संभालो। ऐसे तो ये डे बाई डे और ज़्यादा बदतमीजी दिखाएगा, कितना भी समझा लो कोई चीज़ की नहीं सुननी, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं, कैसे भी कभी किसी की हेल्प नहीं करता है संगत जी। पता नहीं जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को तो बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है। पूरा दिन पूरी रात कुछ करता रहता है, हम ये समझ रहे हैं पढ़ रहा है, और बड़ा बड़ा कुछ नहीं रहा संगत जी, गेम खेलता रहता है। गुरु पापा आप उसे सद्बुद्धि दीजिए, और उसको इतनी बुद्धि दीजिए जिससे उसे बड़ों से बात करने की तमीज़ आए। मतलब वो अपने डैडी की तरह बात करने लग गया, बिहेव करने लग गया। वो ये सोचता है जैसे पापा बदतमीजी से बात करते हैं, तो ऐसे ही करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड को तो झेल लिया क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। मेरे पास और कोई वो नहीं है सिवाय उनकी बातें सुनने की, क्योंकि संगत जी क्या ही कर सकती है एक हाउसफुल लेडी, आप भी समझ सकते हो। तो संगत जी जब बच्चों की बातें सुननी पड़ने लग जाएं, तो इससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता ना। जबकि अभी हमारी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तब ये हाल है। कहीं भगवान न करे अगर हम इनकी इनकम पे डिपेंडेंट अगर हो गए, तो तब ये हमारा क्या हाशर करेंगे। प्लीज़ गुरु पापा। वैसे मेरे बच्चे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है उसको गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी गुरु पापा आपको उसे बुद्धि देनी पड़ेगी, और उसको प्लीज़ ठीक करिए। मैंने आपके ऊपर सब सरेंडर कर दिया गुरु पापा। तो इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। फिर मैं आप सभी के समक्ष गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।